اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 23 آیت نمبر 23 سے انگوٹ شروع کریں گے انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں وقت، موقع، توفیق، ہمت، ہم میں کچھ استطاعت، کچھ فہم، کچھ اللہ کی باتوں کی اور دنیا کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان صلاحیتوں کو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی فائدہ مند بنائے اور خاص کر ہمیں آخرت میں سرخرو فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ ہم آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جیسا کہ تذکرہ چلتا آ رہا تھا، سورہ نساء جب سے شروع ہوئی تو جو جہالت کے دور کے یا اسلام کے شروع کے دور کے جو معاملات جو ان کے آباء و اجداد سے چلتے آ رہے، ان میں خاص کر خواتین کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی وغیرہ کے معاملات، اور اسی طرح سے یتیم بچوں کے ساتھ، یتیم بچوں کے مالوں کے ساتھ جو کچھ کیا جاتا، اور اسی کے پس منظر میں یا ایسی ہی کچھ برائیوں کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اور ان کے بارے میں احکامات کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو آیات ذکر کی، وہ سورہ نساء میں ایک خاص اہمیت کی حامل ہے۔ اگرچہ سورہ بقرہ میں اور سورہ آل عمران میں بہت ساری آیات یا بہت ساری اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے، لیکن زیادہ وضاحت کے ساتھ اور زیادہ کھلے طور پر ہمیں سورہ نساء میں ملتے ہیں ایسے احکامات اور ایسی ہدایات جو ہیں۔ اور خاص کر پچھلی آیات جو ہم نے پڑھی، وہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جب ذکر کیا خواتین کے ساتھ وراثت کا ذکر ہوا، سب سے پہلے خواتین کا ذکر ہوا، خواتین کے ساتھ زیادتی، جیسے وراثت میں ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی، اس کے بعد یتیموں کے ساتھ جو معاملے کیے جاتے تھے، اور پھر وراثت کی تقسیم کے دوران دو اہم معاملات خواتین کے معاملے میں، عورتوں کے معاملے میں، ایک تو عورتوں کو یا یتیم بچیوں کو اس نیت سے اپنے پاس رکھ لیا جاتا ہے، بعد میں ان کے ساتھ نکاح کریں گے، اور نکاح کرنے کے بعد ان کو حق مہر وغیرہ جو اس میں چھوٹ ہو جائے گی، یا ان کی جو بھی ان کے جائیداد یا ورثہ ان کو ملا ہے وہ ان کے ذمہ ان کے آ جائے گا، اور اس کو ہڑپ کر جانے کے چکر میں کچھ یہ اس طرح کی نیتیں ہوتی تھی کچھ لوگوں کی۔ یا ایک دوسرا بہت ہی اہم معاملہ جو ذکر ہوا کہ ایک آدمی کی وفات کے بعد اس کی بیوی جو ہے، اس کے اوپر اس کے جو سوتیلے بیٹے ہیں، سوتیلے بیٹے جو ہیں وہ اس کے اوپر وراثت کی طرح اس کو عورت کو تقسیم کیا جاتا تھا، اور سوتیلے بیٹے جو ہیں وہ بھی ماں کے ساتھ، یعنی سوتیلی ماں کے ساتھ مطلب عقد نکاح کر لیتے تھے باپ کی وفات کے بعد۔ اس کا بھی ذکر ہوا۔ تو ہم نے جو آخری آیت پڑھی تھی، آخری آیت سے پہلے سیکنڈ لاسٹ کچھ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سارے معاملات جو ہیں ان میں توبہ کی اہمیت کا ذکر ہوا، کہ توبہ صرف اسی کی قبول ہو سکتی ہے جو جیسے ہی وہ گناہ کا کام کرے اور اس کو احساس ہو تو فوراً وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، تو ایسے ہی بندے کی توبہ جو ہے وہ قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور جو اپنے ظلم میں بڑھتے جاتے ہیں، جن کے لیے اس طرح کے بے رحمی کے کام جو ہیں وہ کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے، اور جو اپنی عمر کے آخری حصے میں پہنچ جائیں، جب ان کو لگے کہ ہماری موت آ دم کی، تو اس وقت وہ
तौबा के लिए खड़े हो गए तो उस वक्त तौबा कबूल नहीं होगी, यानी मौत के वक्त देखकर तौबा कबूल करना, वो तौबा कबूल नहीं होगी। और इसके अलावा जो काफिर मर गए, जो कुफर में ही मर गए, कुफर में ही मर गए का मतलब इनकार ही करते मर गए किसी मामले में, तो यकीनन उनकी भी तौबा जो है वो कबूल नहीं होगी। इतनी सख्त आयत नाजल हुई। उसके बाद फिर आखिरी आयत में हमने देखा था, आयत नंबर 22 में, जिसमें अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर ये कह दिया कि तुम सब मत निकाह करो अपने उन उन औरतों के साथ, अपने बाप की औरतों के साथ, यानी अपनी जो सौतेली माएँ हैं उनके साथ निकाह करने की ममानत की गई, जिसका जिक्र हुआ था। और साथ ये भी जिक्र हुआ आखिरी आयत में कि ये तो बहुत ही बेहयाई का और फहाशी का या बेहयाई का काम है, नापसंदीदा है और बहुत ही बुरा चलन है, या जो बहुत ही बुरा रस्म व रिवाज जिसे कह सकते हैं वो है। तो इस तरह की आयत जो हैं वो बहुत ही वाज़ेह अहकामात के साथ और कुछ सख्त सख्त हदायत या सख्त इंफॉर्मेशन के साथ अल्लाह ताला ने बयान की। अब आगे जो आगे आने वाली आयत हैं, उनमें से 2 आयत अगली जो हैं, बल्कि 3 आयत, वो हुर्मत के रिश्तों के बारे में हैं, यानी वो रिश्ते जिनके माबैन निकाह जो है वो हराम है, जिनके माबैन निकाह हराम है। अब हुर्मत वाले रिश्ते जो हैं उनको 2 मोटी मोटी कैटेगरीज में हम डिफाइन कर सकते हैं, या मतलब सेपरेट कर सकते हैं, ब्रेकअप कर सकते हैं उनका। एक कैटेगरी तो वो है जो वो रिश्ते जो मुसलसल परमानेंट अबदी तौर पर हराम कर दिए गए, कि उनके साथ किसी भी सूरत में निकाह जायज़ नहीं, सारी ज़िंदगी में उनके साथ निकाह जायज़ नहीं, या वो रिश्ते हराम हैं। और दूसरी कैटेगरी जो है उसमें वक्ती तौर पर या अंदर सर्टन सर्कमस्टांसेस या कंडीशन के तहत, या कुछ कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को पूरा करके उनके साथ निकाह किया जा सकता है, अदरवाइज उनके साथ वो निकाह जायज़ नहीं होता है। जब इनकी तफसील हम पढ़ेंगे तो यकीनन हमें वो बहुत आसानी से समझ लग जाएगी। वो आयत शुरू करने से पहले, आयत नंबर 23 शुरू करने से पहले एक दोबारा जैसा कि वरासत के कानून के सिलसिले में हमने देखा था कि अल्लाह ताला ने मुख्तसर सी आयत नाज़िल की जिसमें बहुत जामे अहकामात थे, लेकिन उन आयत के अलावा सूरह नूर में या कुरान मजीद के मुख्तलिफ दूसरे मकामात पर भी कुछ और इस तरह की हदायत हैं। उसके अलावा अहादीस से बहुत ज़्यादा रहनुमाई मिलती है। तो जो भी वरासत के कानून या वरासत की जो भी तकसीम के मामलात हैं उनको जब भी डिस्कस किया जाता है या इस तरह के इश्यूज़ को टैकल किया जाता है, तो उसमें फिर वो सारी आयत और अहादीस को सामने रखकर ही फैसला किया जाता है, और केस टू केस डिस्कशन होती है, केस टू केस कि किस तरह के हालात व वाक़यात हैं, कौन उनके वारिस हैं, उसके मुताबिक फैसला किया जाता है कि उनमें कि फिर उसका तरका जो है वो किस तरह से तकसीम होगा। इसी तरह से ये हुर्मत वाली आयत जो है वैसे तो बहुत आसान सी हैं, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन इतनी नहीं है, लेकिन हमारे माशरे में कुछ बेरा रवि इस तरह की बढ़ चुकी है कि हमें कुछ देखने में मिलता है कि कभी-कभी ऐसे ऐसे अजीबो-गरीब किस्म के सवाल भी आ सकते हैं हमारे सामने, जिनका कभी हम सोच भी नहीं सकते। तो लिहाज़ा ये आयत जो हैं ये बड़ी आम फ़हम से हैं, और इनकी एक्सटेंशन जो है वो कुछ अहादीस से भी मिलती हैं। तो इस बारे में भी अव्वल तो ये बहुत वाज़े मतलब आयत है। इसको जब हम तर्जुमा पढ़ेंगे तो इसमें बहुत क्लियर हमें इंस्ट्रक्शन पता चल जाती है, लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो इसकी फर्दर रहनुमाई जो है वो अहादीस से मिल जाती है। तो अगर तो कोई केस टू केस वाला मामला आ जाए इस तरह का, तो उसमें फिर जो साहिब इल्म है, जिनके पास हदीस का भी और कुरान का भी बहुत ठोस तरीके से इल्म हो, तो उनके साथ वो केस डिस्कस करके मामला जो है ना वो रिज़ॉल्व किया जा सकता है। अव्वल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, हमें बहुत आम फ़हम अल्फाज में बहुत आम फ़हम मतलब ज़ुबान में हमें पता है कि कुछ मामलात या कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनके साथ मतलब निकाह जो है वो कभी भी जायज़ नहीं होता। बहरहाल हम शुरू करते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, हराम कर दी गई हैं तुम पर तुम्हारी माएँ। तुम्हारी माएँ, जैसा कि पिछली आयत में जिक्र हुआ, माएँ तो डेफिनेटली हराम है, इसमें तो किसी किस्म का कोई शक किसी को गुजरना ही नहीं चाहिए कि माँ के साथ भी हुर्मत का कोई हुक्म आ सकता है। लेकिन जैसा कि तज़किरा हुआ कि पिछली आयत में हमने देखा कि सौतीली माँओं के साथ भी अक़्द जो है, निकाह जो है वो कर लिया जाता था जहालत के दौर में। तो फिर अल्लाह ताला ने मना कर दिया वहाँ पर कि जो तुम्हारे बाप की जो बीवियां हैं उनके साथ निकाह करना जो है उससे उससे बिल्कुल मना फरमा दिया। तो यहाँ पर दोबारा से आ गई, चाहे वो सगी माएँ हैं, चाहे वो सौतेली माएँ हैं जिनके साथ तुम्हारे बापू ने निकाह किया, वो सब हराम है। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम। तो ये 10-12 किस्म के रिश्ते आएंगे शुरू में, जो अबदी तौर पर हराम है। अबदी तौर पर मतलब परमानेंटली हुई वो हराम है, किसी भी सूरत में उनके साथ निकाह जायज़ नहीं। और उसके बाद फिर 2-3 कैटेगरीज ऐसी आएंगी हमें इस आयत में और उससे अगली आयत में, जो फिर कंडीशनल हैं कि एक सर्टन सर्कमस्टांसिस के तहत ही उनके तहत उनके साथ निकाह जो है वो जायज़ है या जायज़ नहीं है। बहरहाल शुरू की कैटेगरीज में जो मुसलसल मुस्तकिल तौर पर हराम रिश्ते हैं उनका जिक्र है कि हुर्रिमत अलैकुम अलैकुम उम्महातुकुम, तो तुम्हारे ऊपर हराम कर दी गई हैं तुम्हारी माएँ, व बनातुकुम, और तुम्हारी बेटियां। तुम्हारी बेटियां, अब बेटियां जब जिक्र होगा तो बेटियों के बाद उनकी बेटियां और उनकी आगे बेटियां, यानी कि नवासियां और नवासियों के आगे जो हैं वो सारी की सारी उस कैटेगरी में आ जाएंगी। ये एक यूनिवर्सल रूल के तौर पर आप जो कह लें तो कह सकते हैं, जो अब्दी अब्दी हराम रिश्ते हैं उनके उनके मुतल्लिका जो है कि तुम्हारे ऊपर हराम कर दी गई तुम्हारी माएँ, व बनातुकुम, और तुम्हारी बेटियां, व अखवातुकुम, और तुम्हारी बहनें, व अम्मातुकुम, और तुम्हारी फुफियाँ। अम्मातुकुम यानी बाप की बहनें यानी फुफियाँ। व खालातुकुम, और माँ की बहनें जो हैं जिनको खालाएँ या खाला कहते हैं, खालाएँ। व बनातुल अख़ी, व बनातुल अख़ी, और भाई की बेटियाँ यानी कि भतीजियाँ। व बनातुल उख्ती, और बहन की बेटियाँ यानी भांजियाँ। व उम्महातुकुम, और तुम्हारी वो माएँ, अल्लाती अर्ज़अनकुम, जिन्होंने दूध पिलाया हो तुम्हें, जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया हो, यानी कि रज़ाई माँ जो है, या दूध जिसका पिया हो उस वो माँ जो है, वो माँ भी हराम है निकाह के लिए। व अख़वातुकुम मिनर रज़ाअती, और तुम्हारी दूध शरीक बहनें। दूध शरीक बहनें का मतलब इसमें एक तो वो आ जाती हैं कि एक रज़ाई माँ की जो बेटियां हैं वो, जिस किसी माँ के अलावा किसी दूसरी औरत का अगर दूध पिया है तो उसकी वो औरत भी और उसकी बेटियां भी, या इसके अलावा अगर अपनी ही माँ का दूध किसी दूसरी बच्ची ने पिया है तो वो भी रज़ाई मतलब बहन की कैटेगरीज में आ जाती है। तो इस तरह से ये दोनों सिलसिले इसमें आ जाएंगे कि तुम्हारी दूध शरीक बहनें, व उम्महातु निसाइकुम, और तुम्हारी औरतों की माएँ। तुम्हारी औरतों की माएँ बीवियों की माएँ यानी कि सास जो है, वो सास, ये परमानेंट वो रिश्ते हैं जो परमानेंट हराम है निकाह के लिए। और तुम्हारी सास, व रबाइबुकुम, और तुम्हारी लड़कियां, अल्लाती जो फी हुजूरिकुम, तुम्हारी गोद में है या तुम्हारी परवरिश में है, तुम्हारी वो बेटियां जो तुम्हारी परवरिश में है, मिन निसाइकुम, तुम्हारी उन बीवियों से, अल्लाती दखल तुम, जो कि तुम दाखिल हो चुके, यानी जिनके साथ निकाह करके इज़्दवाजी ताल्लुक जो है वो कायम हो चुका है, यानी निकाह भी हो चुके और रुखसती भी हो चुकी। वो बेटियां जो तुम्हारी परवरिश में हैं, तुम्हारी उन औरतों से जिनके साथ तुम्हारा निकाह और रुखसती दोनों हो चुके, यानी वो बेटियां जो सौतेली बेटियां, जो अगर कोई दूसरा निकाह किया है तो उस औरत की पहले से किसी दूसरे खावंद से जो बेटियां हैं, वो बेटियां भी अगर निकाह और रुखसती हो चुकी तो वो बेटियां भी हराम हो गई। अल्लाती दखल तुम बिहिन्ना,
उन औरतों के साथ या उन औरतों के साथ मतलब निकाह के साथ मतलब रुखसती भी हो चुकी, इज़्तिवाजी तल्लक भी कायम हो चुका। फ़ाइन लम तकून दखलतुम, बस अगर ना तुम दाखिल हुए हो बिहिन्ना उन पर, फला जुनाह अलैकुम, तो फिर तुम्हें कोई गुनाह नहीं कि तुम उन लड़कियों के साथ निकाह कर लो। यानी वो सौतेली बेटियां जिनकी माओं के साथ, जैसा कि पहले जिक्र हुआ कि अगर रुखसती भी हो चुकी है तो फिर उनके साथ शादी जो है निकाह हराम है, लेकिन अगर सिर्फ निकाह हुआ और रुखसती नहीं हुई, अज़दवाजी ताल्लुक अगर कायम नहीं हुआ, तो उस सूरत में अगर उस औरत को तलाक दे दी तो उसकी सौतेली बेटियां जो है उनके साथ निकाह जो है वो हो सकता है। जी। वह हलाइलु, और बीवियां, अबनाइकुम, तुम्हारे बेटों की, और तुम्हारे बेटों की बीवियां, यानी कि क्या कहते हैं बेटों की बीवियां, बहुएं, तुम्हारी बहुएं, अल्लाज़ीना मिन अस्लाबिकुम, जो तुम्हारी सलब या पीठ से हैं, जो तुम्हारी सलब या पीठ से हैं। यहाँ से सलब या पीठ से तो मुराद है जो सगे बेटे हैं, सगे बेटे जो तुम्हारे ही नुत्फे से पैदा हुए हैं। यानी ये मर्द का जो नुत्फा है वो उसकी पीठ पीठ का मकाम जो है वहाँ से वो पैदा होता है। तो उस सिलसिले में इसको सगे बेटे जो हैं, तो जो तुम्हारे नुत्फे से पैदा हुए, ये उनके बारे में कि उन वो तुम्हारे उन बेटों की बीवियां जो तुम्हारे सलब से पैदा हुए या तुम्हारे सगे बेटे जो हैं, यानी तुम्हारी सगी बहुएं। अब सगी बहुएं जो है इनके बारे में थोड़ा सा मतलब मैं क्लैरिफाई कर दूं कि मुंह मुंह बेले बेटियां जो है, इसीलिए जो है कि अहादीस में उसकी फर्दर कुछ एक्सप्लेनेशन भी मिलती है कि मुंह बोले बेटे जो हैं उनका मुकाम सगे बेटों की तरह नहीं हो सकता है। इसी तरह से मुंह बोले बेटे की बीवी जो है, वो अगर वो बेटा उसको छोड़ दे या अगर वो वफात पा जाए तो उसकी बीवी जो है वो जायज़ हो सकती है, जायज़ होती है। इसकी बहुत अच्छी मिसाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हज़रत ज़ैद बिन हारिस हैं, उन्होंने हज़रत ज़ैद बिन हारिस जो हैं वो मुंह बोले बेटे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। वो उनके पास ही रहे, उनके पास ही पले बढ़े और वो उनके बेटों की ही तरह उनके पास रहे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शादी कराई थी बनु हाशिम की एक खातून से। तो वो बनु हाशिम की खातून जो है वो मतलब आला नस्ब की थी, और हज़रत हज्जाज बिन हारिस जो वो ज़ाहिर है ग़ुलाम थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बेटा बनाया हुआ था अपना, और उनको इज़्ज़त और तकरीम दी हुई थी, और इसी इज़्ज़त और तकरीम की वजह से उन्होंने उसकी शादी जो है एक आला नस्ब की खातून से कर दी। लेकिन उनका फिर बस आपस में बसा नहीं, घर नहीं बसा, यानी कि आपस में गुजारा नहीं हो सका, तो उनकी फिर तलाक हो गई। तो जब वो तलाक हो गई तो उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि वो खुद निकाह किया हुआ था और खुद अपनी ज़िम्मेदारी पे वो ब्याह के लेके आए थे हज़रत ज़ैद बिन हारिस के लिए, तो जब तलाक हो गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनसे शादी भी कर ली थी। तो ये एक मिसाल भी मिलती है हदीस से हमें कि मुंह बोले बेटे जो हैं, सगे बेटे नहीं, मुंह बोले बेटे जो हैं, उनका मुकाम सगे बेटों की तरह नहीं हो सकता। वो भी मतलब हराम के रिश्ते में शामिल हो जाते हैं। ओके, वह आगे बढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व व अन तजमउ, और ये कि तुम जमा करो बैनल उख्तैनी, दो बहनों को एक निकाह में। ये उससे पहले तक, ये इससे पहले जो हमने पढ़ा कि वो तुम्हारी जो सगे बेटों की बीवियां या सगी बहुएं जो हैं उन तक उनके साथ भी निकाह जो है नहीं हो सकता। यहाँ तक थे जो अब्दी रिश्ते, अब्दी हराम रिश्ते जो हैं, जिनमें तो कभी भी शादी हो ही नहीं सकती, जिनमें निकाह किसी भी सूरत में जायज़ नहीं। उसके बाद आगे कुछ ऐसे मामलात हैं जिनमें कंडीशनल है, कुछ सर्टेन हालात में उनके साथ निकाह जायज़ नहीं। अगर वो हालात बदल जाएं तो फिर कोई सूरत निकल सकती है कि उनके साथ निकाह हो जाए। उसमें ये पहला जिक्र हुआ कि वह अन तजमाउ बैनल उख्तैन, कि ना तुम ये कि तुम जमा करो दो बहनों को एक निकाह में, क्योंकि ये हुर्मत का है और आयत के शुरू में है कि हराम कर दी गई। तो ये हराम कर दी गई हैं, तो इसी हराम कर दी गई जो है उसी को
उसी का इतलाक जो है वो सारी आयत के जितने टुकड़े हैं सारे टुकड़ों पर होता है, उसी का इतलाक जो है इस टुकड़े पर भी होता है कि वो हराम कर दी गई या हराम है तुम पर कि तुम जमा करो दो बहनों को एक निकाह में। दो सगी बहनें जो हैं वो एक निकाह में जमा करना जो है उसको भी मना कर दिए गए। पहले दौर में ऐसा होता था कि दो सगी बहनों को भी मतलब निकाह कर लिया जाता था, लेकिन शरीयत इस्लामी में उससे ममानत आ गई। अब इस केस में क्या है कि अगर तो अगर एक बहन है, अगर मतलब सॉरी जो बीवी है, अगर उसको तलाक दे दी गई या बीवी की अगर वफात हो गई तो फिर उसके बाद उसकी सगी दूसरी बहन से शादी जायज़ है, लेकिन एक बीवी के होते हुए उसकी बहन जो है उसके साथ निकाह जो है वो जायज़ नहीं। ठीक है, तो ये अबदी नहीं है, ये एक मतलब आरजी कह लो, बंदिश है। अगर कोई कंडीशन ऐसी हो गई, सूरत हाल ऐसी पैदा हो सकती है कि उनके साथ निकाह हो जाए। और ये कि ये कि तुम जमा करो दो बहनों को एक निकाह में, यानी कि दो बहनों को एक निकाह में एक ही वक्त निकाह में लाना जो है उससे भी मना कर दिया गया। इल्ला मा कद सलफ, हाँ मगर जो अलबत्ता पहले गुजर चुका, अगर जो पहले इस तरह से मामलात हो चुके तो फिर अल्लाह जो है उनके बारे में मतलब माफ़ी जो है वो माफ़ करने वाला है। उसका उसका आपा करना या उसको उसको मतलब उसका कफारा करना या उसके बारे में उसके उसके निकल जाना उस मामले से, ये ज़्यादा अफजल है। इसी तरह से जैसा जिक्र हुआ कि सहाबा कराम ने फिर बहुत सारी बेटियां, बहुत सारी बीवियां अपनी छोड़ी थी, जिन्होंने वो निकाह भी किया हुआ था और अपनी सौतेली माओं से, वो भी, और कुछ दो दो तीन तीन बहनें भी जमा की हुई होती थी उस वक्त, तो उनको भी छोड़ दिया था बहुत सारे साहबा ने। बहरहाल ये मामला जो है इस पर भी अल्लाह ताला ने रोक टोक लगा दी कि दो बहनों को एक साथ एक ही वक्त में निकाह में रखना जो है वो भी मना कर दिया गया। इससे पहले जो हो चुका उसको अल्लाह ताला दरगुजर करने वाले हैं। उससे उससे जो हो चुका, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, कान है गफूर और रहीमा, बहुत बख्शने वाला और बहुत ही रहमत करने वाला, रहम करने वाला, बहुत ही मेहरबान। तो आई होप कि ये बहुत ही आसान सी आयत हैं और बहुत ही वाज़ेह इसमें अहकामात हैं। इसके साथ ही ये हमारा पारा जो है, पारा नंबर 4 जो है वो भी ख़त्म हो गया। पारा नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, पारा नंबर 5 में आ गया, वल मुहसनातु, और मुहसना औरतें, मिनन निसाई, औरतों में से, और औरतों में से मोहसिना। मोहसिना जो है उसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। मोहसिना आज़ाद औरत की भी कहते हैं, मोहसिना जो है वो शादीशुदा औरत को भी कहते हैं। मोहसिना जो है वो दर हकीकत है कि कोई एक औरत जो किसी किले में हिसार में हो, किसी हिसार में हो या किसी किले में हो या कैद हो। ठीक है, तो वो मोहसनात, ये मोहसना औरत जो है वो एक तो निकाह के बंधन में भी कैद हो सकती है, और यह एक खानदान के बंधन में भी, खानदान के बंधन में से मुराद के बाप के अंदर या भाइयों के जेर साया अगर एक औरत है, जहाँ पर उसके लिए मुमकिन नहीं कि वो अपनी मर्जी से शादी करती फिरे, उसको निकाह करने के लिए अपने बाप की या अपने भाइयों की वकील की ज़रूरत होती है। पहला निकाह जो है ये हमने पढ़ा था। तो वो मुहसिना जो है वो किले में कैद या बंधन में कैद की हुई औरत, चाहे वो शादीशुदा औरत है या चाहे अपने बाप या अपने भाई या अपने किसी दूसरे जो ज़िम्मेदार रिश्तेदार है उसके उसके मातहत है। तो वो औरतें, शोहर वाली औरतें, ये इस आयत की जब तफसीर करेंगे तो हमें पता चलता है कि ये वो औरतें जो शादीशुदा हैं, जिनके शोहर हैं और शोहर हयात हैं। वल मुहसनात मिनन निसाई, औरतों में से वो शोहर वाली औरतें, वो शादीशुदा शोहर वाली औरतें, इल्ला मा मलकत, यानी कि अगर कोई औरत निकाह में है, ऑलरेडी शादी में है, शादीशुदा औरत है, तो उस शादी के पीरियड में, उस निकाह के बंधन में वो किसी दूसरे मर्द के साथ निकाह नहीं कर सकती। दूसरे अल्फाज में कि तुम किसी उस औरत के साथ शादी नहीं कर सकते, वो औरत तुम्हारे लिए हराम है जो किसी दूसरी दूसरे शोहर की दूसरे शोहर के निकाह में है। ठीक है, जब तक कि वो निकाह ना टूट जाए या तलाक ना हो जाए, खुदा ना खास्ता, या मतलब वो बेवा हो जाए या इस तरह का मामला हो जाए, जब तक वो किसी दूसरे के अक़्द निकाह में है, वो औरत जो है वो शादी के लिए हराम है, किसी भी के लिए भी। इल्ला मा मलकत, मगर जिसके मालिक हो जाए ऐमानकुम, तुम्हारे दाएं हाथ, जिसके मालिक हो जाए तुम्हारे दाएं हाथ का मतलब है तुम्हारी जो लोंडियां या कनीजें हैं, वो कनीजें या लोंडियां
جو जंग में मतलब तुम्हारे कब्जे में आ गई, जंग के दौरान माले गनीमत के तौर पर तुम्हारे कब्जे में आ गई। यहाँ पर एक थोड़ा सा जिक्र करता चलूँ, क्योंकि लोंडियों और गुलामों के बारे में बहुत ही मिसकंसेप्शन है, और खासकर गैर मुस्लिम जो है वो इस बारे में बहुत एतराज़ात करते हैं। हालांकि वो हिस्ट्री में अगर देखें तो उनको तो एहसान मान होना चाहिए इस्लाम का, दीन इस्लाम का और शरीयत मोहम्मदी का, जिसमें बतदरीज आकर ये ग़ुलामी का निज़ाम जो है उसको ख़त्म किया मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो यहाँ पर है कि ग़ुलाम जो है उस वक़्त दो तरह के होते थे। एक ग़ुलाम तो वो था जो जो सेल परचेज करके कह लें कि पूरी की पूरी फैमिली नस्ल दर नस्ल ग़ुलाम थे, नस्ल दर नस्ल उनको बेचा जाता था, पूरी की पूरी फैमिली जो है वो ग़ुलाम होती थी। ठीक है, वो उसके बेटे उसकी बेटियां जो है उनको भी बेच दिया जाता था, और इस तरह से खरीद कर अपने पास रखा हुआ है। एक तो वो गुलाम थे, दूसरी वो गुलाम या लौंडियां वो होती थी जो मैदान जंग में माल गनीमत के तौर पर आ गए, और मैदान जंग में भी माल गनीमत के तौर पर आम औरतें या आम बच्चे जो है वो नहीं आ सकते थे। उसमें वो औरतें शामिल थी जो जंग में हिस्सा लेती थी, जो किसी जंग में हिस्सा लेकर मर्दों के शाना बिशाना जंग में किसी भी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पर मैदान जंग में वो उतर कर वो मुसलमानों के मुकाबले में आकर मतलब जंग के मैदान में आकर वो करती थी। तो उन औरतों को जब दिया जाता था उनके पास, शिकस्त जब हो गई इस लश्कर को, तो उसमें से जो खवातीन जो है उनको कैद बना लिया गया, तो वो लोंडियां होती थी, आम औरतें नहीं होती थी। ऐसा नहीं कि मतलब सॉरी, किसी लश्कर ने किसी बस्ती पर हमला किया और वहां पर उन्होंने औरतों को और बच्चों को पकड़ दकड़ करके कैद बना लिया और वो कैदी हो गए, वो नहीं। बल्कि जो मैदान जंग में जंग करते हुए या जंग के मैदान में जो औरतें जो पकड़ी गई वहां पर, इसी तरह से मर्द जो है वो गुलाम बन जाते थे, और औरतें जो हैं वो लौंडियां बन जाती थी। और इस्लाम में उसकी हिकमत ये है कि उसको अपने पास रख कर उनको माले गनीमत के तौर पर बांट दिया जाता था या तकसीम कर दिया जाता था, ताकि उससे जो मुसलमान है वो नफ़ा पहुंचाए। उसकी हिकमत ये थी कि अगर वो औरतें होती थी जो जंग में हिस्सा लेती थी, जाहिर है किसी ना किसी तरह से वो ट्रेंड होती थी और किसी ना किसी तरीका से उनमें कुछ स्किल्स होती थी, जंगी महारतें होती थी उनमें। तो अगर उन औरतों को वापस छोड़ दिया जाए तो इसका मतलब ये है कि वो वापस जाएंगी अपने कबीलों में, अपने बच्चों को दोबारा से पालेंगी और एक नया लश्कर जो है उसकी वो तरबियत करेंगी। तो इस हिकमत के तहत उन औरतों को मतलब गुलाम बना के रखा जाता था, और लेकिन उनके ऊपर फिर एहसानात किए जाते थे, उनके ऊपर फिर जुल्म जबर जो है वो बिल्कुल नहीं था, जो जैसा कि दूसरे मज़ाहब में या दूसरी कौमें करती थी। इस्लाम में यह फ़र्क था कि उनके साथ बहुत ही हुस्न सलूक किया जाता था, और उनको एक एक इज्जत के साथ या मारूफ तरीके से रखा जाता था। बहरहाल ये एक दूसरी डिटेल है। तो यहाँ पर सिर्फ वजाहत इसलिए की कि वो लोंडी जो है उसका कंसेप्ट, आजकल ये कंसेप्ट ख़त्म हो चुका है, आजकल ये तसव्वुर जो है ये मादूम हो चुका है। ये इस्लाम की एक ख़ास करम नवाजी है पूरी दुनिया पर के स्लेवरी सिस्टम जो है ये कैसे ख़त्म हुआ यहाँ पर। बहरहाल कि इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, मगर वो जिसके तुम मालिक हो तुम्हारे दाएं हाथ, यानी कि वो लोंडियां जो तुम्हारी मलकियत में है, उनके साथ निकाह जो है वो किया जा सकता है। आज़ाद औरतें, शोहर वाली औरतें जो वो हराम है, मगर वो औरतें जो लोंडी के तौर पर तुम्हारे पास मौजूद हैं। किताब किताब अल्लाह अलैकुम, हुक्म है अल्लाह का तुम पर। ये सारा कुछ जो अल्लाह ताला ने ऊपर बयान कर दिया, ये तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला ने हुक्म के तौर पर नाजल कर दिया, हुक्म कर दिया इन चीज़ों का, इन इन हुर्मत के रिश्तों की पासदारी करने का, इनकी हुर्मत जो है उसकी पासदारी करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया। व उहिल्ला, और हलाल कर दी गई, लकुम तुम्हारे लिए, मा वरा जालिकुम, जो इसके अलावा हैं, इसके अलावा ये जो हुर्मत के ऊपर जो रिश्ते आए हैं, इसके अलावा बाकी जो औरतें हैं वो तुम्हारे ऊपर हलाल कर दी गई। ये भी इस्लाम की एक बड़ी खूबसूरती है कि इसमें जो कैद किया जाता है वो हमेशा मना की हुई या ममानत की हुई या हराम चीज़ों को कैद किया जाता है। जिन चीज़ों के बारे में इजाज़त होती है उनको ओपन छोड़ दिया जाता है। वो एक से आप समझे कि दायरा एक ड्रॉ कर दिया जाता है हराम चीज़ों के गिर्द।
اس کی مثال اگر لیں تو جیسے کھانے پینے کی چیزوں میں کچھ چیزیں جو ہے ان کو حرام کر دیا گیا، شراب کو حرام کر دیا گیا، مردار کو حرام کر دیا گیا. اس کے علاوہ مردار میں بہت ساری چیزیں مطلب سور کو حرام کر دیا گیا. تو اس طرح سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو دائرے میں لا کر سرکل ڈرا کر دیا کہ اس دائرے کے اندر جو چیزیں ہیں وہ حرام ہے. اس دائرے کے باہر جو چیزیں ہیں وہ ایک سرٹن کنڈیشن کے اگر پورا اترتی ہیں تو وہ جائز ہیں، حلال ہیں، ادروائز ان کو بھی حرام. وہ پھر فقہ سے ہمیں بآسانی پتہ چل جاتا ہے. لیکن حرام جو چیزیں ہیں ان کو دائرے کے اندر رکھ کے مختصر کیا جاتا ہے تاکہ جو مومن ہے، مسلمان جو ہے، ان کے اوپر سہولت رہے، آسانی رہے. اسی طرح سے نکاح کے بارے میں بھی جو حرمت والے رشتے ہیں جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں، ممکن نہیں کسی بھی طور پر یا کنڈیشن کے طور پر، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا یا کچھ احادیث میں اس کی فردر ایکسٹینشن ہے. اس کے علاوہ باقی عورتیں جو ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی. اوکے. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال کر دی گئی تمہارے لیے جو اس کے علاوہ ہیں، ان تبتغوا، کہ تم ان سب سے حاصل کرو، تم سب حاصل کرو انہیں بھی اموالکم، اپنے مالوں سے، یعنی اپنے مال خرچ کر کے تم مہر مقرر کر کے ان کو حاصل کرو یا ان کے ساتھ نکاح کرو. محسنین غیر مسافین، ان محسن کرنے والے، ان نکاح کرنے والے، نکاح لانے والے، سب نکاح میں لانے والے ہوں. محسنین سب نکاح میں لانے والے ہوں، یعنی کہ تمہارا جو پرپز ہے وہ جائز اور صحیح جو نکاح کا رشتہ ہے وہ قائم کرنا ہے. غیر مسافہین، نہ کہ بدکاری کرنے والے کا، نہ کہ وہ رشتہ قائم کرنا جس سے کوئی بدکاری کا یا فحاشی کا کی خواہش کرنا ہو. یہ اس ضمن میں بھی اگر اس کو ایکسپلین کریں تو ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جیسے کہ ایک حلالہ جو ہے وہ بہت مشہور ہے. حلالہ جو ہے وہ مطلب معاذ اللہ ایسے مطلب گروہ کراتے ہیں جن کو بہت ہی دیندار سمجھا جاتا ہے، جبکہ حلالہ جو ہے وہ ہر ایک کو پتا ہے کہ وہ کسی بھی طور پر جائز نہیں. اسی طرح سے نکاح مطلب کسی ایسی مقصد کو حاصل کرنا جس میں خاندان کا نظام قائم کرنا نہیں، بلکہ شہوت زنی ہے، بلکہ فحاشی ہے، بلکہ اپنا جس وقت گزارا کرنا ہے اس سلسلے میں، یا اپنی خواہش جو ہے اسی کو پورا کرنا، صرف ایسے مطلب برے خیالات کے ساتھ نکاح میں کسی عورت کو لانا، یہ کسی طور پر بھی جائز نہیں. نکاح کی حرمت یا نکاح کی ناجائز ہونا اسی وقت ممکن ہے جب تمہارا معاملہ جو ہے، تمہاری نیت ارادہ جو ہے وہ خاندان بسانے کا ہو، فیملی بنانے کا ہو. اس کے علاوہ دوسرے جو بدی کے معاملات ہیں، بدکاری کے معاملات کی نیت کے ساتھ نکاح کرنا وہ بھی جائز نہیں، جس کا یہاں پر ذکر ہو گیا اس آیت کے اس حصے میں. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ، پھر جو تم فائدہ حاصل کرو، بھی اس کے بدلے، منہن ان سے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فریضہ، تو تم سب دو انہیں ان کے مہر بطور فرض. اب جب تم نے نکاح کر لیا تو نکاح کرنے کے بعد تم نے ان سے فائدہ اٹھا لیا. فائدہ اٹھا لیا کا مطلب ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم ہو گیا، اب وہ تمہاری خدمت میں معمور ہو گئی، تو روزمرہ کے معاملات میں انجام دے رہی ہے، تمہارے پاس رہ رہی ہے، تم اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہو، تو اس کے بدلے میں جو مہر مقرر کیا تو تم سب دے دو ان کو. مہر ان کے جو فرض کے طور پر جو مہر تمہارا مقرر ہوا تھا تو وہ مہر تم ادا کرو گے ان کو فرض سمجھ کر، نہ کہ صدقہ خیرات سمجھ کر، نہ کہ اس کو مطلب کراہت سمجھ کر. نہیں، یہ تو تمہارا فرض ہے کہ تم ان کو ان کا مہر جو ہے جو مقرر ہوا تھا پہلے وہ تم ادا کرو. ولا جناح، اور نہیں گناہ کوئی، علیکم تم پر، فیما اس میں جو تراضی تم باہم رضامندی سے کم بیشی کر لو. باہم رضامندی سے تم طے کر لو، یا باہم رضامندی سے اس میں کوئی کمی بیشی کرو، بھی اس سے من بعد الفریضہ، مقرر کرنے کے بعد. یعنی وہ مہر جو مقرر کیا تھا وہ مہر مقرر کرنے کے بعد اس کو ادا کرنا تمہارے اوپر فرض ہے، فرض کے طور پر تم ادا کرو گے. ہاں البتہ اس میں یہ چھوٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی کر دی کہ اس کے بعد اگر باہمی رضامندی سے، یعنی عورت کی رضامندی سے اگر اس میں سے کوئی کمی بیشی ہو جائے، تھوڑا سا حصہ وہ چھوڑ دے عورت، یا پورے کو پورا ہی معاف کر دے، تو یہ اس عورت کی یا دونوں کی آپس میں باہمی رضامندی کے بعد
के साथ इस तरह के मामले जो हैं वो जायज़ हैं। इस बारे में भी काफ़ी तफसील से जिक्र हुआ था कि औरतें जो है अक्सर अक्सर जो है वो बाद में अपने जेवर वगैरह या महर वगैरह जो है वो मर्दों के हवाले कर देती हैं, तो इस ये मुमकिन है। अलबत्ता हमें इस चीज़ का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि मर्द हजरात जो है खावंद जो है वो इसको महर का जो सोना वोना जो भी है वो ले लेते हैं, कोई प्लाट वगैरह लेना है, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है कारोबार के लिए कि चलो ठीक है हालात बेहतर होंगे तो दोबारा तुम्हें बना देंगे, तो दोबारा तुम्हें बना दे की बात पर अगर कुछ लिया है तो इसका मतलब है कि वो कर्ज लिया है, तो उसको वापस करना जो है वो जरूरी है। जब तक कि वो औरत जो है वो दिल से उसे माफ ना कर दे कि चले हालात अच्छे नहीं है, मतलब नहीं हो सकता तो अल्लाह ताला के लिए माफ कर दे, तो अगर तो औरत माफ कर दे ठीक है। अदरवाइज जितने भी अच्छे आपके ताल्लुकात हैं या मामलात हैं या जितना भी आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपने कुछ ऐसे वादे पे महर लिया हुआ है तो उसको वापस करना आपकी जिम्मेदारी है, वो कर्जी समझ शुमार होना चाहिए। इन अल्लाह बेशक अल्लाह काना है अलीमन खूब इल्म रखने वाला, हकीमन और खूब हिकमत वाला। ये तुम्हारे जितने भी मामलात हैं, जो भी तुम मामलात करोगे नकाह के मामलों में या मतलब ये जो महर हुआ महर के मामलों में या इससे अलावा जितने भी तुम्हारे मामलात हैं, वो चाहे ज़ाहरी तौर पर हैं चाहे बातनी तौर पर है, चाहे तुम्हारे दिलों की नीयतें हैं चाहे ज़ाहरी इरादे हैं, वो सब अल्लाह ताला जो है वो उनको खूब अच्छी तरह से अल्लाह ताला इल्म रखता है। और उसके पास बहुत सारी हिकमतें भी हैं, वो हिकमत के तहत उसने सारे अहकामात को वाज़े कर दिया और हिकमत के तहत ही वो आजमाइश भी करता है फिर इंसान की। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी आज हम यहीं पर रुकते हैं। इस बारे में अगर किसी को कुछ ऐड करना है तो ज़रूर सामने आए। जी इसी के साथ फिर इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासर हो और हमारे हमारे रोज़मर्रा के मामलात में अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।